based on positive operator. So सब तो पहला पॉजिटिव ऑपरेटर क्या होते हैं इन्हों आप डिस्कस करांगे और उस तो पहला एक रिलेशन डिफाइन करांगे। अगर मेरे को A1 and A2 these are self adjoint operators, so पहला तो अपने माइंड च रखना not simple operator, so these are self adjoint operator on a Hilbert space H की गल चल रही है। तो A1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ related by this relation यानी less than equal to A2. Basically it is not less than equal to, it is a relation that defined between two operators if and only if it satisfy this condition. अगर साडे कोल इस कंडीशन ਨੂੰ कोई भी इनर प्रोडक्ट सैटिस्फाई करता तो साडे कोल आ रिलेशन सैटिस्फाई होएगा। अगर ये रिलेशन सैटिस्फाई हुंदा तो साडे कोल आ जिहड़ा इनर प्रोडक्ट वाला रिलेशन है ये सैटिस्फाई होएगा। तो ये साडे कोल पहली डेफिनेशन। सैकंड है पॉजिटिव ऑपरेटर। पॉजिटिव ऑपरेटर ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ A greater than equal to this zero mean zero operator, not zero number, it is a zero operator। और ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है inner product of AX comma X is greater than equal to 0 for every X belongs to H। ठीक है जी। So this is called a positive operator on a Hilbert space। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ Hilbert space ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं फर्स्ट एग्जाम्पल चूज कर ली। So show that T into T star is a positive operator। तो असी इनू चेक करना। So मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुका है पहला सैल्फ एडजॉइंट होना बहुत जरूरी है जो असी गल कर रहे हैं। तो T into T star साडे कोल सैल्फ एडजॉइंट भी है, कितना चेक करिए। सो T into T star फिर सारे दा स्टार ले, सो रिवर्सल ला लगा T डबल स्टार इंटू T स्टार, फिर प्रॉपर्टी लाई T डबल स्टार T दे बराबर हुंदा इंटू T स्टार। सो एदा एडजॉइंट एदे इटसेल्फ दे बराबर आ गया। सो इट मीन्स T into T star is a positive operator। It is not positive, it is a self adjoint operator। So positive दी पहली प्रॉपर्टी असी प्रूव करते ये सेल्फ एडजॉइंट। हुण देखिए पॉजिटिव कितना प्रूव करते T T star X comma X इनर प्रोडक्ट ले लें और दिस इज फॉर एवरी X belongs to H। So this can be written as T star X दूजे पासे चला गया T star X this values। So this is by definition norm of T star X raised to power 2। सानू पता it is always positive for every X belongs to H। So what it means? It means T into T star is a positive operator। So this is a positive operator। तो positive operator दिया दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो सेल्फ एडजॉइंट हो जाए और अगर सेल्फ एडजॉइंट हो गया नाल दे नाल that operator is greater than equal to 0 हो जाए। So in that case it is called a positive operator। ठीक है जी। उस तो बाद अगली थ्योरम मैं करन जा रहा हूं। So this is very important और मान लो ये पेपर दे विच 100% एग्जाम दे विच आई। So it is expected for examinations। और इस थ्योरम नु की है कि साडे कोल तीन प्रॉपर्टीज है
ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ implies second, second implies third, third implies one। तो साडे कोल तिन्ने स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सो पहला मैं स्टेटमेंट मेरे को फर्स्ट इज गिवन, तो आ स्टेटमेंट गिवन और इनू मैं प्रूव करना। सो गिवन पार्ट अपने माइंड च रखना, जो प्रूव करना मैं उहदे ते जान लगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेट T star T which is equal to identity। तो असी प्रूव की करना चाहते हैं, इनर प्रोडक्ट Tx, Tx Ty which is equal to inner product x, y। So this value, this can be written as x, T star T into y। This values are given. By using this result, this can be written as x, identity of y। So this can be written as x, y। So which is for every x belongs to h। So what we get? We get inner product Tx, Ty, this is equal to inner product x, y for every x, y belongs to h। So साडे कोल second property असी प्रूव करते। हुण second property given और असी third प्रूव करनी। Now second is given और असी प्रूव की करनी third property। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्म ऑफ Tx इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x। सो गिवन साडे कोल की है, लेट इनर प्रोडक्ट Tx Ty which is equal to x, y for every x, y belongs to h। So this is a given। y की जगह ते भी असी x ले लिए। So this is equal to Tx, Tx। So this is equal to x, x for every x belongs to h। So what it means? Norm of Tx raised to power 2 which is equal to norm of x raised to power 2। So it implies norm of Tx which is equal to norm of x for every x belongs to h। तो इहदे नाल साडे कोल थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। हुण थर्ड पार्ट तो असी फर्स्ट पार्ट च जाना। सो थर्ड पार्ट क्या है? नॉर्म ऑफ Tx is equal to norm of x। Now in this case, let norm of Tx which is equal to norm of x। So this is for every x belongs to h। Prove की करना सी T star T is equal to identity operator। Now squaring on both sides, what we get? This square is equal to this square। What we get? Inner product Tx, Tx which is equal to x, x। और this can be written as, इन्हों इधर ले गए, T star T of x, x। So which is identity x, x, this values, it implies T star T minus identity of x, x is equal to 0 for every x belongs to h। ठीक है जी। सो असी कल ही रिजल्ट प्रूव किया सी, जे किसी ऑपरेटर दा इनर प्रोडक्ट x, x नाल 0 आ जाता तो
तो वो ऑपरेटर जीरो ऑपरेटर बन जाता, यानी टी स्टार टी माइनस आई, दिस विल बिकम ए जीरो ऑपरेटर। अगर जीरो ऑपरेटर बन गया तो टी स्टार टी ये साडे कोल आ गया आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो व्हाट इट मीन्स थर्ड इंप्लाइज साडे कोल फर्स्ट। तो व्हाट वी प्रूव, असी पहले तो स्टार्ट होए दूजे वाल चले और दूजे तो स्टार्ट होए तीजे वाल चले, ठीक है जी, और तीजे तो स्टार्ट होए असी पहले वाल चले। It means all the statements are equivalent. So in this way we can prove this theorem. So this is very important result and expected for examinations. So in usi yaad रखें। So after that ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈ। So I just this. Now what is the statement of this theorem? In this theorem, A is a positive operator. Then it satisfies two conditions. One is A is self-adjoint. Second is A is greater than or equal to 0. Zero operator. Then prove that I minus A is non-singular. So पहला तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰ। ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਟੇਬਲ, ਔਰ ਇਨਵਰਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਰੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ I plus A, this is a positive, this is a non-singular, this operator is a non-singular. So non-singular का मतलब की है 1 1 as well as on। ਹੁਣ 1 1 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। मैं ऑपरेटर थ्योरी अप्लाई की तो अगर tx 0 के बराबर हो गए then ये तो इंप्लाइज हो जाए x इक्वल टू 0 then t is 1। तो पहला मैं इन 1 1 शो करूंगा। सो I take I plus A of x which is equal to 0 for every x belongs to h, this value। What it implies from this, ax the values मेरे को लागे माइनस एक्स के बराबर, ठीक हो गया जी। माइनस एक्स के बराबर जे एक पासे रखना एक्स है, और सानू ए पॉजिटिव ऑपरेटर दिता है तो ए एक्स कॉमा एक्स ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्लियर हो गया। हुण दूजे पासे दी वैल्यू पुट करदा तो ए एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी है माइनस एक्स हो गया, और दूजे पासे एक्स आ गया। सो माइनस 1 बाहर निकल गया, इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा एक्स होंदा नॉर्म ऑफ एक्स दा होल स्क्वायर। सो व्हाट इट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स रेज टू पावर 0। सो दिस इज लेस दैन इक्वल टू 0, नेगेटिव ना मल्टीप्लाई किया और ये पॉजिटिव ऑलरेडी होंदा। सो इट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स दा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सो फ्रॉम दिस नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फ्रॉम दिस एक्स इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इट मीन्स दिस I plus A operator which is a 1 1 operator, क्योंकि असी एक्स नाल इहदा इमेज 0 के बराबर लिया सीगा, और असी प्रूव की करता कि वो एलिमेंट भी 0 के बराबर है। जे प्रूव हो गया then it is a 1 1, क्लियर हो गया जी। हुण अगला पार्ट आ गया ऑन टू का। सो ऑन टू का मतलब हुंदा रेंज जिहड़ी ओहदी है वो साडे कोल अगर मैं दिस वैल्यूज की गल करा
H Hilbert space और this is H Hilbert space। तो अगर आप कोई मैपिंग T ਨੂੰ on to prove करना, एक तो तरीका हुंदा कि हरेक एलिमेंट का पिछले बन्ने भी इमेज होवे, और दूजा तरीका हुंदा कि जिहड़ी T दी रेंज है वो इहदे टोटल सैट दे बराबर आ जाए, यानी H दे बराबर आ जाए। So in that way I will prove this result। So what I take M। So what is this? It is the range of I plus A। I plus A, A दी रेंज है। रेंज का मतलब साडे कोल क्या आ गया? I plus A of H, और रेंज का मतलब क्या आ गया? फिर एक्सप्लेन कर देना। I plus A at point X image X belongs to H। A आ गया। Now what is M? M is a subspace of H। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ subspace of a Hilbert space H। H ਸਾਡੇ ਕੋਲ Hilbert space ਆ, तो ਇਹ ਉਹਦੀ subspace ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ M ਤੇ H ਬਰਾबर ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ तो पहला तो मैं इन्हू क्लोज्ड प्रूव करूंगा, ताकि मैं जिहड़ी गिवन रिजल्ट है वो अप्लाई कर सका। सो टू शो M is closed। सो क्लोज प्रूव करने का की तरीका हुंदा कि असी कोई इहदा लिमिट पॉइंट लईए और उन्होंने इहदे ही अंदर भेज दईए। ठीक है जी, ये साडे कोल क्लोज्ड प्रूव करने का तरीका हुंदा। उस तो पहला एक रिजल्ट ये यूज होना, वो आप पहला फाइंड आउट कर ली। व्हाट इज फॉर एवरी X बिलोंग्स टू H, ले ले वेक्टर। सो व्हाट वी हैव I plus A of X, फिर सारे दी नॉर्म ले दिस वैल्यूज। सो इनू मैं लिख सकता नॉर्म X प्लस AX सारे दी नॉर्म, और इनू मैं इनर प्रोडक्ट से लिख सकता X प्लस AX कॉमा X प्लस AX। तो इस इनर प्रोडक्ट को सिंपलीफाई करा, तो पहला मैं X लिया, X का कंबीनेशन X नाल बनाया, जमा X का कंबीनेशन AX नाल बनाया, फिर लिया AX का कंबीनेशन X नाल बनाया, और फिर AX का कंबीनेशन AX दे नाल बनाया। ठीक है जी। सो चार मेरे को कंबीनेशन बन गए, और चार कंबीनेशन मैं इस ढंग दे नाल रिप्रेजेंट करता X, AX, AX, X and so on। It implies this values। So what is this? It is a norm of X square। अच्छा जी, what is this? It is a norm of AX the whole square। कोई वैल्यूज आ है AX, X, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट आ A, तो मैं इनू भी उस फॉर्म च लिख सकता कितना X, AX नू रिप्रेजेंट करांगे A स्टार X, X सेल्फ एडजॉइंट आ, ये आ गया AX, X, तो पॉजिटिव ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट। सो इत्थे साडे को वैल्यू आ गई 2 टाइम AX, X। सो कंफ्यूज नहीं होना कि ये डबल कितना हो गया, कि दोनों का अलग अलग टर्म आ, दोनों चाहे अलग अलग टर्म आ पर दोनों सेम क्यों हो जाती हैं, क्योंकि A सानू सेल्फ एडजॉइंट दिता। सो ये तो A सानू अगली प्रॉपर्टी दी कि दिस इज ए पॉजिटिव ऑपरेटर, दिस इज पॉजिटिव ऑपरेटर। जे ये पॉजिटिव ऑपरेटर है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आ नॉर्म दा स्केयर भी पॉजिटिव है, सो अगेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
then this total term is greater than equal to norm of x raised to power 0 for every x belongs to h. So what it means? It means norm of I plus a x सारे दी power 2 is greater than equal to norm of x raised to power 2 for every x belongs to h. मतलब ये प्रॉपर्टी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਰੇਂਜ तो वो तो लिमिट पॉइंट लैके ही ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ सो ਮੰਨ ਲਓ लिमिट पॉइंट ਲਵਾਂਗੇ और ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ सो ਮੰਨ ਲਓ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ सो व्हाट इज दिस it is a limit point of m की range the limit point of m so there exists a sequence किदे विच in m हुण m दी sequence दसो किदां दी होएगी m दी sequence होएगी I plus a into xn टाइम इदां दी होएगी sequence क्लियर हो गया क्यों क्योंकि सानू पता है कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਕੌਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹ ਕੌਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੈਟ I take this is I plus a of xn. So this is a BA Cauchy sequence in M. So बस simple जे याद रखो. So this is a Cauchy sequence in M. तो by definition की होएगा norm of I plus a एक पासे एक्स एम ले लो दूजे पासे I plus a एक्स एन ले लो दिस नॉर्म approaches to 0 as mn approaches to infinity तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा अगर मैं कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाती सो व्हाट इट इज ए नॉर्म I plus a into x m minus x n this values आ गया so this is approaches to 0 as mn approaches to infinity जे a 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ so a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਵੀ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ by this condition norm of xm xn raised to power 2 less than equal to norm of I plus a xm minus xn raised to power 2 ठीक है जी so it approaches to 0 as mn approaches to infinity अगर हो गया तो साढ़े को xm minus this values xm minus xn raised to power 2 approaches to 0 as mn approaches to infinity so अगर 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ तो ये सीक्वेंस मेरे को कितना दी होगी कॉची सीक्वेंस होगी so this sequence xn so which is a Cauchy sequence in Hilbert space H और H साढ़े को कितना दी space आ complete it is a complete अगर complete आ तो ये convergent होएगी मतलब there exists some x
belongs to H such that limit n approaches infinity xn x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, क्योंकि ये साडे कोल H कंप्लीट है तो साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई। असी प्रूव किहदे लई करना I प्लस ए एक्स एन, तो वो भी हो गया। कितना हो गया? नाउ लिमिट ऑफ n approaches infinity I plus a of x। सो इनू आपां ध्यान नाल देखिए, ये साडे कोल बाउंडेड ऑपरेटर है। बाउंडेड ऑपरेटर हुंदा कंटीन्यूस। अगर फंक्शन कंटीन्यूस होवे तो लिमिट नू आपां अंदर बाहर ले जा सकते। बहुत सिंपल जी भाषा च तुहानू मैं गल समझा रहा कि अगर फंक्शन कंटीन्यूस बाउंडेड है या कंटीन्यूस है तो लिमिट नू असी अंदर बाहर ले जा सकते हैं। जदों साडे कोल लिमिट अंदर बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि I प्लस ए सानू कंटीन्यूस दिता, सो दिस वैल्यू विल बिकम लिमिट n अप्रोचेस इनफिनिटी xn, और ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ I प्लस a नाल आ गया x किहदा एलिमेंट h दा, तो what it belongs to m। सो ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? m ਦੇ ਵਿੱਚ। m ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ? h ਦਾ। तो अगर कन्वर्जेंट भी हो गई तो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रेंज है this m ये कितना हो गया? इट इज ए क्लोज्ड सबस्पेस of a Hilbert space H। Hilbert space H, ठीक है जी। तो मेरे कोल आ टोटल स्पेस H है और इस टोटल स्पेस दे विच मेरे कोल जेड़ा इहदे अंदर है ये है M मान लिया। सो दिस इज ए M क्लोज स्पेस आ गया, सब स्पेस। मैं प्रूव करना चाहना M इक्वल टू H। नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, आइदर M is properly contained in H या M is equal to H। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है। या इन्हों इदा भी कह सकते M नॉट इक्वल टू H और या M इक्वल टू H। ठीक है जी, मेरी आ जरूरत आ, ਇਹਦਾ मतलब मैं ਇਹਦੇ ਤੇ कंट्राडिक्शन लगानी। सो मैं इनू अजूम कर लिया, यानी M is not equal to H। अगर M H ਦੇ बराबर नहीं है तो ਉਹਦਾ प्रॉपरली सब स्पेस हो गया। अगर M H ਦੇ बराबर नहीं है तो M ਦਾ बिहेवियर किदां दा होया? प्रॉपर हो गया, क्लोज्ड हो गया और नाल दे नाल सब स्पेस हो गया। किदा? ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H दा, हिल्बर्ट स्पेस H दा। तो बाय डेफिनेशन असी एक थ्योरम कीती सी, देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो वेक्टर्स। वो असी कोई भी लै सकते जेड़ा तुहानू ठीक लगे। तो किताब के विच x0 लिया तो मैं x0 ही चूज कर लेना तुहाडी कन्फ्यूजन नू अवॉइड करन लई। सो आई टेक x0 नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू H, ये वड्डे स्पेस च लेना, सच दैट दिस x0 शुड बी परपेंडिकुलर टू M। ये सानू जिहड़ी उस थ्योरम दी मदद दे नाल सानू मिल जाए। जे x0 M दे परपेंडिकुलर हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ M ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ M ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? I plus A of x0, x0
ये इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों होएगा? क्योंकि जेड़ा आई प्लस ए एक्स नॉट दा इमेज ये एम नू बिलोंग करता। दिस वैल्यूज आ गई। हुण आपां इनू सिंपलीफाई कर लीए। जदों असीं इनू सिंपलीफाई करांगे, सो व्हाट वी गेट एक्स नॉट प्लस ए एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर। इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लाई यानी अलग अलग किया। सो जदों असीं अलग अलग किया, इट इंप्लाइज एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट प्लस साडे कोल इनर प्रोडक्ट ए एक्स नॉट इक्वल टू 0। दिस वैल्यू इट इंप्लाइज ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स इज गए। सो इनू मैं सीधा लिख सकता ए एक्स नॉट विच इज इक्वल टू माइनस नॉर्म ऑफ एक्स नॉट का होल स्केयर। क्योंकि ए पॉजिटिव ऑपरेटर है इस करके ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगा। जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगा, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 होएगा। सो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, यानी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ वैल्यू 0 हो जाएगी। जे ਇਹਦੀ वैल्यू 0 हो गई तो एक्स नॉट साडे कोल 0 आ गया। सो विच इज इम्पॉसिबल, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है? क्योंकि एक्स नॉट सानू पता ये नॉन जीरो वैक्टर है, इत्थे 0 हो गया तो कंट्राडिक्शन आ गई। जे कंट्राडिक्शन आ गई तो जो असी मान रहे सी वो गलत हो गया। और असी की मान रहे सी कि एम ते एच बराबर नहीं है। तो अगर गलत हो गया तो एम ते एच बराबर हो गया। जे बराबर हो गया तो आई प्लस ए साडे कोल किदां दा हो गया 1 1 ऑन टू, यानी कि नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन जिदा इनवर्स एग्जिस्ट करता। सो दिस इज ए इनवर्टेबल एंड नॉन सिंगुलर भी वर्ड यूज कर सकते। हुण इस थ्योरम की मदद नाल ही जिहड़े अगले पार्ट है कहंदा इन पर्टिकुलर प्रूव दैट आई प्लस टी स्टार इंटू टी ये भी नॉन सिंगुलर होंगे। ये नॉन सिंगुलर कितना होंगे? क्योंकि असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर पिछली इक्वेशन च ए दी जगह ते तुसी टी स्टार टी लेना तो ए तुहाडे कोल किदां दा ऑपरेटर हो गया? पॉजिटिव ऑपरेटर हो गया। जे पॉजिटिव ऑपरेटर हो गया सो पिछली थ्योरम मुताबिक आई प्लस ए नॉन सिंगुलर हो गया। सो देन इट मीन्स आई प्लस टी स्टार टी साडे कोल कितना दा हो गया। सो दिस ऑपरेटर इज ए जेड़ा साडे कोल आ गया नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ये तो सानू पॉजिटिव ऑपरेटर दिता और आई प्लस ए साडे कोल नॉन सिंगुलर हो जाएगा।